اپنی تحریر سے سفید پوشوں کو آزمائش میں مبتلا کرنے والے قلم کے سپاہی حفیظ نعمانی کا قلم پوری زندگی جرأت و جسارت کے موتی بکھیرتا رہا۔ اسی لیے ان کے نہ رہنے پر ان کے چاہنے والوں نے اتنا لکھا کہ ان کے بھانجے اویس سنبھلی کو ایک کتاب تیار کرنی پڑی۔ دوسری کتاب نوجوان قلمکار اطہر حسین کے ذوق و شوق کا نتیجہ ہے۔ دونوں کتابوں پر گفتگو کی ہے ملک کے نامور ادیب اور شاعروں نے۔ صدر محترم، خواتین و حضرات، مجھے اویس نے حکم دیا تھا کہ اس کتاب پر ایک مختصر تبصرہ آپ کر دیں، تو میں نے اس کا عنوان رکھا ہے پسر تمام کنر۔ جب کوئی اچانک شاعر ہو جاتا ہے تو دوسرے شعراء مڑ مڑ کر پیچھے دیکھنے لگتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اسی طرح جب کوئی یک بیک قلمکار بن جاتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے کہ تحریر کی داد دیں یا قلم کار کا ساتھ دیں۔ کچھ بھی ہو، صلاحیت ابھر کر سامنے آ ہی جاتی ہے۔ یہ صلاحیت ہی تو ہے کہ صلاحیت نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص بال اور داڑھی بڑھا کر بنگالی نہ جانتے ہوئے بھی ٹیگور نظر آ رہا ہے۔ اویس سنبھلی ٹیگور نہیں ہیں، انہیں مذکورہ ٹیگور بننے کا شوق بھی نہیں ہے۔ وہ سنبھل کے ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور سنبھل سنبھل کر قدم بڑھا رہے ہیں۔ ان کی مارکت العرا تعریف حفیظ نعمانی ایک عہد ایک تاریخ اتنی بھرپور، اتنی مکمل اور اتنی وسیع ہے کہ اسے تعریف نہیں تصنیف کہنا چاہیے۔ کتاب کا پیش نامہ اوپر سے نیچے تک اور پھر نیچے سے اوپر تک پڑھ ڈالیے، آپ محسوس کریں گے کہ اویس نے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دی ہیں، یعنی یہ کہ دل نکال کر رکھ دیا ہے، جس میں تقریباً 80 مصنفین، قلمکاروں، غیر قلمکاروں، فکشن نگاروں، بڑے ادیبوں اور چھوٹے اخبار نویسوں کے لیے شکر گزاری کے جو کلمات سپرد قلم کیے ہیں، اس نے کتاب کی افادیت میں تھوڑا اضافہ کیا ہے۔ اویس نے اپنے موضوع سے جس طرح انصاف کیا ہے وہ بہت کم طالب علم کرتے ہیں۔ محقق اور تخلیق کار میں یہی بنیادی فرق ہوتا ہے کہ محقق اپنا موضوع پکڑتا ہے جبکہ تخلیق کار چڑیاں پکڑتا ہے۔ تقریباً 500 صفحات پر مشتمل کتاب میں جن 80 قلمکاروں کو شامل کیا گیا ہے، ان سے کسی ایک شخصیت پر مضامین لکھوانا اور پھر انہیں 500 صفحات میں حسب مراتب شامل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہندوستان کی ترقی کے دعوے کرنا آسان ہے۔ کتاب کے گرد پوش کے لیے بھی اویس نے اپنی صلاحیتوں کو منوانے کی کوشش کی ہے۔ محترم حفیظ صاحب کی تصویر اور پشت پر خود اپنی تصویر آویزاں کی ہے، اور پھر 500 صفحات کی عمارت کا بوجھ 3 عظیم کھمبوں یعنی مشرف عالم ذوقی، سہیل انجم اور معصوم مراد آبادی کے سپرد کر دیا ہے۔ میں نے جب اپنے والد مرحوم جناب مائل ملی آبادی پر 350 صفحات پر مشتمل کتاب داستان مائل ملی آبادی تحریر کی تھی تو میرے چچا پروفیسر خان محمد عاطف نے فرمایا تھا کہ تم نے لائق اولاد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ برادرم اویس سنبھلی کے لیے بھی میرے حافظے میں یہی کلمات محفوظ ہیں۔ حفیظ نعمانی ایک ایماندار صحافی تھے، خوش مزاج انسان تھے، معتبر ادیب تھے اور بہت اچھے دوست تھے۔ ان کی جدائی سے تمام اردو والے مغموم ہیں۔ یہ وہ غم نہیں ہے جو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کو کسی حادثے میں مرنے والوں پر ہوتا ہے۔ یہ وہ غم ہے جو دماغ سے دل تک جاتا ہے اور اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک دل دھڑکتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ
आदमी कुत्ते को काट ले तो खबर नहीं बनती, लेकिन कुत्ता आदमी को काट ले तो खबर बन जाती है। हफीज साहब की सहाफत की ये फनकारी थी कि वो आदमी के कुत्ते को काटने पर भी दिलचस्प खबर बना देते थे। अब मगफिरत करे, अजब आज़ाद मर्द था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा मोहतरम मुकाम मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, प्रोफेसर रमेश दीक्षित साहब, मसूद भाई, प्रोफेसर रूप रेखा वर्मा साहिबा और तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन जलसा। हफीज़, सबसे पहले तो मैं इन दोनों किताबों के मुरत्तबीन आशना चेहरे और हफीज़ नोमानी एक है एक तारीख के मुरत्तबीन जनाब अतहर साहब और अतहर हुसैन साहब और जनाब उवैस अम्बली साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। साथ ही इसके नाशिर एहसास एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। दोनों ही किताबों की तबात, जिल्द और तरवक सभी दीदरजेब और लाजवाब हैं। मुमताज़ सहाफ़ी, अदीब और दानिश्वर जनाब हफीज़ नोमानी साहब की शख्सियत हमजीत और हमगीर थी। वो उर्दू सहाफ़त की उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे जिन्होंने हमेशा बेलाग लिखा। जब भी कहीं कोई गलत बात देखी या महसूस की, उनके कलम नुमा तलवार ने फौरन उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। ना कभी डरे, ना कभी किसी की धौस में आए और ना ही बड़ी से बड़ी लालच देकर उन्हें सच और हक बात कहने से रोका जा सके। ना ही कभी पल भर के लिए सोचा कि वो जो लिख रहे हैं उससे किसी को बुरा लगेगा या इख्तिलाफ पैदा होगा। बस जो गलत है वो गलत है और गलत बात कहीं भी हो, कहीं किसी ने भी कही हो, बड़ी से बड़ी शख्सियत ने कही हो, कभी उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और ना ही कभी किसी की नाराज़गी का ख्याल किया। गलत बात उन्होंने हमेशा गलत और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जिंदगी भर आवाज़ बुलंद की। हफीज़ नोमानी साहब, जिनको मैं हफीज़ चचा कहती थी, उनके हमारे ख़ानदान से देरीना ताल्लुकात थे। मेरे वालिद डॉक्टर शफात अली सिद्दीकी साहब, चचा शफात अली सिद्दीकी और मेरे बड़े भाई डॉक्टर सादत अली सिद्दीकी, जिनके 2 खाके आशना चेहरे में शामिल हैं, और इसके साथ ही मेरी भाभी, जिनका अभी इशरत ने जिक्र किया, सलमा सिद्दीकी, उनका भी खाका आशना चेहरे में शामिल है। तो बहुत देरीना मरासिम थे और ख़ासकर भाभी थे और मुदस्सरा बाजी से बहुत अच्छी दोस्ती थी। हफीज़ साहब की बेटी जो है, तो मैं उनके साथ बचपन में उनके घर जाया करती थी। हफीज़ चचा ने मुझे हमेशा मुन्नी कहकर ही मुखातिब किया, कभी नाम नहीं लिया, हमेशा मुझे मुन्नी कहकर मुखातिब करते थे और इतने खुलूस, इतनी शफ़क़त से मिलते थे कि अब ये महसूस होता है कि अब इतने मुखलिस और प्यार और मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग बहुत ही कम हैं। जो उनसे मिला हमेशा उनके खुलूस और प्यार का, मोहब्बत का हमेशा के लिए गर्विज़ा हो गया, और जो नहीं मिला उनके लिए बस बकौल मीर तकी मीर ये कहा जा सकता है कि पैदा कहाँ है ऐसे परागन का तबा लोग, अफसोस तुमको मीर से सोहबत मिल रही। हफीज़ साहब की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं और उनकी तख्लीकी काविशात पर तरतीब दी गई इन दोनों ही किताबों के मुरत्तबीन ने नहायत मेहनत, लगन और जाफशानी से इन मजमूओं को तरतीब दिया है। आशना चेहरे के मुरत्तिब जनाब अतहर हुसैन साहब ने हफीज़ साहब की इल्मी, अदबी और सियासी शख्सियात पर लिखे गए मज़ामीन में से 29 तहरीरों को मुंतखब करके ये मजमूआ तरतीब दिया है। साथ ही इस किताब का मुफस्सिल तारुफ भी पेश किया है। मेरी उनसे अब तक मुलाकात तो नहीं हुई, अलबत्ता मैं उनकी तहरीरें पढ़ती रहती हूँ और उनकी तहरीरों को पढ़ कर ये अंदाज़ा होता है कि उर्दू अदब के मुहक्किकीन और नाक़िदीन की फहरिस्त में बहुत जल्द ही एक अहम नाम का इजाफा होने जा रहा है, जिसके लिए मैं उनके निगरान डॉक्टर उमैर मंजर साहब को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नया नाक़िद और मुहक्किक उन्होंने मतलब उन्हीं की तरबियत में परवान चढ़ रहा है और आइंदा इंशाअल्लाह मैं दुआ हूँ उनके रोशन मुस्तक़बिल के लिए। दूसरा मजमुआ हफीज़ नोमानी एक अहद एक तारीख जनाब उवैस अम्बली साहब का तरतीब दिया हुआ है। 527 सफ़ात
6 अबवाब और 90 मज़ामीन पर मुश्तमिल इस मजमूए में हफीज़ साहब की शख्सियत का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो तशना रह गया हो। हफीज़ नोमानी साहब अपने घर वालों की नज़र में कैसे थे और अरबाब इल्म और अदब की नज़र में कैसे, और बहस साफ़ी उनके बारे में लोगों की क्या राय थी। साथ ही उनकी खुद किताब रुदाद कफस और उनके मज़ामीन के 2 इंतखाब मुझे दियों की कतार और कलम का सिपाही और कलम बंद किए गए अहले इल्म हज़रात के मज़ामीन भी शामिल हैं। हफीज़ नोमानी साहब के इंतकाल पर जो ताज़ियती पैगामात आए वो सब भी ओवैस ने इस मजमूए में शामिल कर लिए हैं। इतना मवाद जमा करना कोई आसान काम नहीं है। किताब का पेशरफ भी वक़ी और बहुत मुनफरिद अंदाज का है। ओवैस ने किताब में शामिल तमाम मज़ामीन का मुख्तसर तबसरे के साथ पेश किया है। अपने मज़मून हफीज़ नोमानी की ज़िंदगी के रोशन नकूश में उन्होंने हफीज़ साहब की शख्सियत के उन तमाम निकात को पेश कर दिया है जिससे हफीज़ साहब की शख्सियत के हर पहलू को बखूबी समझा जा सकता है। सुहेल अंजुम साहब की इस बात से मैं भी इत्तफाक करती हूँ कि ये महज एक किताब नहीं बल्कि एक तारीखी दस्तावेज है जो दर्दमंदान मिल्लत के लिए पेशकीमती तोहफा तो है ही। जनाब हफीज़ नोमानी साहब की हयात व खिदमत पर काम करने के लिए पहला और बुनियादी हवाला भी है। अब इस किताब के मुरत्तिब हुए संभली साहब के मुतालिक मैं यहाँ वक्त की कमी के सबब बहुत मुख्तसर अल्फाज में ये कहना चाहूँगी कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हकीकी रिश्तों ना होते भी हकीकी रिश्तों से बढ़कर हो जाते हैं। ओवैस के वालिद जनाब नज़ीफुर रहमान संभली साहब सादत भाई के पहले शागिर्द भी थे और दोस्त भी, और चाय की हद तक हम प्याला भी। इस रिश्ते को बखूबी इस रिश्ते से ओवैस ने मुझसे खूबी का रिश्ता कायम किया और अब तक उस रिश्ते को बखूबी निभा भी रहे हैं। मैंने लिखा भी है कि ओवैस से मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी तो उस वक्त मैंने उनकी आंखों में जो चमक देखी थी और तो उससे उनकी बातों में जो कुछ कर दिखाने का एक जज्बा महसूस किया था वो गलत नहीं था। आप देख ही रहे कि ओवैस की सराहनी काविशात के जरिए उर्दू अदब के खजाने में रोज़ बरोज़ कीमती इजाफा कर रहे हैं। वो मज़ामीन भी लिख रहे हैं, मजमूए में मुरत्तब कर रहे हैं, कई अखबारात के कॉलम निगार भी हैं, उर्दू की प्रेस भी चला रहे हैं और उर्दू ज़बान से मुताल्लिक अहम मौज़ूआत पर मेयारी सेमिनार भी करवाते रहते हैं। यानी दामे अदब में कदमे में जिस तरह से भी हो सकता है वो उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं और उसमें उसके खजाने में इजाफा कर रहे हैं। तो अब मैं उनके शानदार मुस्तक़बाल तो नहीं क्योंकि वक्त की कमी है, मैं बस उनकी मज़ीद कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे ज़ोरे कलम और ज़्यादा और तुम्हारा अज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, ज़माना तुमसे बहुत काम लेने वाला है। शुक्रिया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।